अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टीवी 21 के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। दारुसलाम में कल मुनक्किद होने वाले जलसे रहमतुल आलमीन के इंतजामात मुकम्मिल। APNGOS सदर ने 20 जनवरी को चलो असेंबली का ऐलान किया। कोकटपल्ली के वफद ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब खबरें तफसील से। दारुसलाम में कल 13 जनवरी को जलसे रहमतुल आलमीन मुनक्किद होने वाला है। आज इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए। इस जलसे के इंतजामात की निगरानी चारमीनार रुकने असेंबली जनाब अहमद पाशा कादरी के ज़ेर निगरानी है। APNGOS सदर अशोक बाबू ने 20 जनवरी को चलो असेंबली का ऐलान किया है। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल उंगोल में तेलंगाना की तश्कील के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा और गुंटूर में आंध्र प्रदेश जर्नलिस्ट गोल मेज कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद है। విభజనవాదంతో పనిచేశారనో వారిని ఈ ప్రాంత ప్రజల్ని సులకనం చేయడం మంచిది కాదని ఆయనకి హితవు పలుకుతూ మరి ఈ రోజున రేపు 15 నుంచి 23 వరకు జరిగే అసెంబ్లీ సమావేశాలు చాలా కీలకమైనవి। మరి మేము అందరి రాజకీయ పార్టీలకు కూడా గతంలో కోరుకున్న విధంగానే బిల్లును ఓడించాలని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేశాం। మరి ప్రజల్లోకి ఈ సమైక్యతవాదం తీసుకెళ్లే పరిస్థితుల్లో రేపు 13న ఈ భోగి మంటలలో తెలంగాణ బిల్లుని మరి భోగి మంటల్లో దగ్ధం చేయాలని, దానికి మరి తెలంగాణలో చాలా మంది చాలా రకాలుగా మాట్లాడటం జరిగింది। గతంలో అసెంబ్లీలో మరి గవర్నర్ మీద కాగితాలు చింపి విసిరేశారు, అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేలని దుర్భాషలాడారు, అసెంబ్లీలో మరి ఎమ్మెల్యేలని దాడి కూడా చేశారు। నిన్న కాక మొన్న గాదె వెంకటరెడ్డి మీద జరిగిన దాడి కూడా మేము ఖండించడం జరిగింది। ఇవన్నీ గుర్తుకు రాని విభజనవాదులు ఈ రోజున బిల్లును మేము దగ్ధం చేస్తుంటే దాని గురించి మాట్లాడటం అనేది సమంజసం కాదు। ఇది ప్రజల మనోభావాలు। సీమాంధ్రలో ఈ విభజన బిల్లు అనేది మరణ శాసనం లాంటిది। దాన్ని ప్రజలు అయిష్టత అనేది ఎలా చూపించాలన్న దాని మీద ఈ పండగని ఆ విధంగా చూపించామే తప్ప ఇది రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనం లేదంటే వేరే ప్రజల ప్రాంతాల మనోభావాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా కాదనే విషయాన్ని మటుకి అందరూ గుర్తుంచుకోవాలి। రేపు 13న మరి ఒంగోలులో ఈ భోగి మంటల సందర్భంగా ఈ విభజన బిల్లుని మరి దగ్ధం చేసే కార్యక్రమం ఒంగోలులో సమైక్య రాష్ట్ర పరిరక్షణ వేదిక ఆధ్వర్యంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, అన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు, ప్రజలు అందరూ కూడా మరి అక్కడ ఈ భోగి మంటల్లో బిల్లుని దగ్ధం చేయడానికి నిర్ణయించారు। మరి మేము కూడా హైదరాబాద్ నుంచి ఒంగోలు వెళ్ళి ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటాం। అలాగే 13 అంటే రేపు సాయంత్రం గుంటూరులో ఏపీ జర్నలిస్ట్ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరుగుతుంది। అలాగే ఈ సంక్రాంతి 3 రోజుల సెలవులన్నీ కూడా పల్లెల్లో ఈ సమైక్య రాష్ట్ర ఉద్యమం యొక్క ప్రాముఖ్యత, ఈ ఉద్యమం ఎలా ఉండాలి, ఈ రాష్ట్రం విడిపోతే ఎవరికి నష్టం జరుగుతుందనే అంశాల మీద పల్లె కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది। దానికి కావలసిన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా। कोकटपल्ली के एक वफद ने आज दारुसलाम पहुंचकर चारमीनार रुकने असेंबली जनाब अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत का ऐलान किया।
इधर इधर आ जाइए। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। खड़े सदाए इस्लाम रियासती सुन्नी कॉन्फ्रेंस की जानिब से जलसा रहमतुल आलमीन आज हाकी ग्राउंड विजयनगर कॉलोनी में मुनक्किद हुआ। इस जलसे से उलमाए दीन ने खिताब किया। الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين أداء محبته أجمعين وقد قال الله تعالى في القرآन सुनने और सुनाने से पहले उसी बारगाह में यूं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदे करते हैं और करते रहेंगे, मगर में दुरूद शरीफ पढ़ने और उसकी फजीलत से मुताल्लिक एक हदीसे बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, ये रिवायत हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले वह तस्लीम का दौरा था। मैंने आपके सामने कहा तशरीफ लाने से पहले, मैंने पैदा होने की बात नहीं की। तशरीफ लाने और पैदा होने में बड़ा सलातो व तस्लीम गुजर रहे हैं। एक पत्थर को देखा, वो मौजूद है इसलिए मौजूद हूं, मैं मौजूद हूं। समझ में आया, जब तक ये आलम है, ये सारी दुनिया है, तो समझ लेना मेरे रसूल है। ये और बात है कि हमारी आंखों को नहीं दिखते, मगर मुस्तफा मदीने से हमें वैसे देख रहे हैं, खुदा की कसम, जैसे एक आका अपने गुलाम को देखता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक और बात बताइए मुझे प्यार से, फिर हम आपको बताएंगे। एक बात मुझे बताओ, अभी जिस माइक से मैं बात कर रहा हूं, इसको मैंने छुआ, इसके वायर को छुआ, अब तो वायरलेस आ रहे हैं। बरसी लालपेट इब्तिदाई सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पी अशोक की जानिब से मजलिस पार्टी का तैयार करदा कैलेंडर की रस्म इजरा चामना रुकन असम्बली जनाब अहमद पाशा कादरी ने अंजाम दिया। इस मौके पर बहादुरपुरा रुकन असम्बली जनाब मौजम खान भी मौजूद थे। एराकुंटा सादात कॉलोनी के वफद ने दारुसलाम पहुंचकर जनाब अहमद पाशा कादरी रुकन असम्बली से मुलाकात की और अपने मसाइल से इन्हें वाकिफ करवाया।
जमाते इस्लामी हिंद की जानिब से जलसे रहमतुल आलमीन नामपल्ली पब्लिक गार्डन में मुनक्किद हुआ। इस जलसे से जनाब सैयद अमीनुल हसन और जनाब ख्वाजा आरिफुद्दीन ने खिताब किया। उम्र की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस मुल्क को दरपेश है और आइंदा आने वाले दिनों में आज यही कुछ होना है। मुसलमानों की जो तस्वीर बनाई जा रही है वो दहशतगर्द की तस्वीर बनाई जा रही है। मैंने इससे पहले यही हैदराबाद के इज्तिमा में बताया था कि मीडिया कैसे उसकी तस्वीर है वो उठाता है और जिसको चाहता है गिराता है। उसकी वजह यह है कि आज मीडिया 80% से ज्यादा मीडिया मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के हाथ में है, अंबानी के हाथ में है, टाटाज के हाथ में है, बिरलास के हाथ में है। ये सारे जो मीडिया टीवी और अखबार है ये आम लोगों के हाथ में नहीं है, इसलिए यहाँ आज़ादी नहीं है। हालांकि मीडिया की आज़ादी बनाए नाम है, लेकिन मीडिया वही कुछ प्रेजेंट करेगा जो वो चाहता है और जिस चीज़ को चाहे वो खराब करके दिखा सकता है। आज़ादी को सबसे बड़ा खतरा है और जिस तरह से इस वक्त आने वाले इंतखाबात में अगर वो बरसर इख्तियार आया तो आज़ादी जिसका खतरा हमें लायक है आइंदा 8-10 साल के बाद, वो 8-10 महीने के बाद भी शुरू हो सकता है। इसलिए बहुत बड़ा मसला है, आज़ादी को जो खतरा है उसको भांपने की जरूरत है। सीरत के हवाले से मैं बताऊंगा, सलाम मक्के में आपने आंख खोली और मक्का का जो ट्राइबल लाइफ है उसमें बस 10 बड़े बड़े कबाइल थे, कबीले की जिंदगी होती थी। कबीला जब कहते हैं तो उसके अंदर कोर कबीला होता था, कोई किसी मुल्क से आकर बस जाए तो उस कबीले का हलीफ होता था और कोई आज़ादी होती है और आज़ादा तौर पर काम किया जा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक अबू तालिब थे आपको सरपरस्ती कबीले की हासिल थी और आप दावत का फरीज़ा अंजाम देते थे और कबीले के बड़े बड़े लोगों के इख्तिलाफ था और कई बार अबू लहब फौरन जो है उसके बाद सरदार बन गया। अबू तालिब के इंतकाल के बाद लोगों ने कबीले के लोगों ने मिलकर अबू लहब को बनाया। सिर्फ वो कुरैश का सरदार नहीं था, 10 कबीलों पर मुश्तमिल एक मरकजी शूरा होती थी जो दारुल नदवा में मुनक़िद होती थी। उसमें 10 कबीले में से एक आदमी को पूरे शहर का भी सरदार माना जाता था और अबू लहब को सरदार बनाया गया। तो अबू लहब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन था, उसने जब बड़ी तरकीब के साथ एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया अपने मजलिस में, बुलाकर उसके कबीले से निकाल दिया जाता है तो उसका खून हलाल हो जाता है। उसे मारना, उसे कत्ल करना कोई जुर्म नहीं होता और कत्ल कर दिया जाए तो उससे खून वहां नहीं लिया जा सकता। ये कबायली जिंदगी के ट्राइबल सोसाइटी के कवानीन में से था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मसला यह था कि फौरन किसी कबीले की सरपरस्ती हासिल हो जाए, फिर मक्के में दावत का फरीज़ा अंजाम देने के लिए गुंजाइश बाकी रहे, आज़ादाना माहौल बाकी रहे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए और ताइफ इसलिए गए कि मालूम था कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का एक कजिन ब्रदर वहां मौजूद था, एक रिश्तेदार वहां मौजूद था जिसका नाम ग्रेटर सिटी नंबर प्लेट मेकर एसोसिएशन सदर मोहम्मद अहमद ने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कानून के लुज़ुम से कई खानदान बेरोजगार हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर डॉक्टर किरण कुमार रेड्डी से भी नुमाइंदगी की जा चुकी है। अहमद ने मुतालबा किया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को फौरी बर्खास्त किया जाए। अपनी जो है रोटी के वास्ते गरीबों को जो है ना हटाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है बोले तो ये जो है आंध्र प्रदेश के अंदर जो हज़ारों आदमी जो है काम करने वाले हैं, हज़ारों दुकानें हैं, एक दुकान नहीं है, हज़ारों दुकानें हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो है करोड़ों दुकानें हैं, इससे जो है करोड़ों रोटी रोजगार चल रही है करोड़ों लोगों की। उसके अंदर ये जुल्म जो है बरपा जा रहा है, ऐसा जुल्म के कुछ पूछना नहीं। और ये जो है कई दिनों से जो है लागू है बोले, ऐसा तो जो है गोवा में जो है इसको कैंसिल कर दिया गया। और यहाँ पे जो है गरीबों को जो है हटाने के वास्ते जो है ना ये नंबर प्लेट ही हटा दे रहा जा रहा है। और नंबर प्लेट जो है बनाने वाले लोग जो है ना मेहनत मजदूरी करके जो है काम करते। अब नंबर प्लेट ही हटा दिया गया तो कौन कौन क्या क्या बनेगा क्या है वो जो है ना ऊपर वाले को ही मालूम और ये हुकूमत को भी मालूम है। इसके अंदर खास जो है बोस्ता सत्यनारायण के पास हम गए, जाने के बाद में जो है बोले कि जो है ऐसा ऐसा हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है बाबा, ये मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट का है। बोले ये पूरा करता धरता जो है ना बोस्ता सत्यनारायण ही है। ये आपका डिमांड क्या है? हमारा डिमांड क्या है बोले तो हमारा डिमांड जो है ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हटाओ और जो हम जो है काम कर रहे हैं वो काम को जो है लागू करो। हमारा ये डिमांड है और इससे हजारों लोग पल रहे, एक दो नहीं, हजारों लोग। हमारे कारोबार पे जो है ना बहुत बड़ा असर पड़ रहा। अब वैसा क्या, हम जो है लाखों रुपए थोड़ी कमा रहे, रोज जो है कमा के रोज खाने वाले हैं यहाँ पे जितने भी बैठे हुए। हम जो नंबर प्लेट बना रहे हैं वही बना रहे हैं, वही हम जो नंबर प्लेट जो बना रहे हैं उससे जो है फालतू नंबर प्लेट है। ये हम जो है ना 18 mm की शीट पे बनाते हैं, ये जो 1 mm की शीट है। और इंडिया जो है कोई जो है कंट्री में लागू नहीं है।
पूरी दुनिया के अंदर ना यूएसए में है, ना जर्मन में है, ना जापान में है, ना कहीं भी नहीं है ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कुछ भी नहीं है। और जो है इन लोग जो है आरटीओ को जो है ना जो टेंडर जो दिए, टेंडर वाले आरटीओ में बैठ रहे, तो गवर्नमेंट जो इनको कैसा परमिशन देती, जबकि हमको परमिशन देना, वो भी प्राइवेट वाले हैं, हम भी प्राइवेट वाले। ये हमारे को जो है पहले जो है ना हमारे को मौका दिया जाना, हमारे से पूछा जाना। हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई इसके अंदर, 50 साल से जो है मैं कारोबार कर रहा हूँ। दूसरे जो आदमियाँ जो है ना 20, 25, 30, 35 साल से यहाँ जो बैठे वाले हैं, और सब जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो लाइन में जो काम कर रहे हैं, कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है। सामान अवेलेबल की लाइन। और जो है गवर्नमेंट तो जो है नौकरी देती नहीं, अब जो हाई सो भी काम छीनने वाले हैं, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम के ऊपर। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का टेंडर जो है ना दो जो है क्या है भाई, दो कंपनियों को जो दिया गया, और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 2 कंपनियों को दिया गया, जबकि हमारे से जो है ना कोई बात हुई ना कोई चीज हुई। सीएम के पास गए, सीएम साहब के पास जाके जो हमारा मेमोरेंडम पेश करे, साहब ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ठीक है भाई आप देके जाइए, हम जो भी है आपसे बात करेंगे। सीएम साहब जो है ना अनजान हो गए, क्योंकि उसमें सीएम साहब का भी हाथ है, बुद्धा सत्यनारायण का भी हाथ है, और जो है ये जो है ना कोई छोटा मोटा मसला नहीं है ये जो है किसी का नहीं बोलो। और दूसरी चीज चंद्रबाबू नायडू बंजारा हिल्स एमबीटी नगर में आज मनियम्मा नामी खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। इसे नामालूम अफराद ने गला घोंटकर कत्ल कर दिया। पुलिस बंजारा हिल्स मसरूफे तहकीकात है। కొంచెం ఇట్లా టాట్ పట్టి లాంటి లేదా ఇంక తగలందరు ఒకటి అమ్మా ఇటువంటి సాగు ఎవరికన్నా ఉన్నదమ్మా, మీరే ఎక్కువ ఉన్నోళ్ళమ్మా, మీకంటే ఎక్కువ మాకు లేదు కదమ్మా, ఇవాళ కాడికే కదమ్మా. సార్ కంప్లైంట్ రాదు ఇంకెవరు మరి नाजरीन फिर एक बार देखते हैं सुर्खियां। दारुसलाम में कल मुनक्किद होने वाले जलसे रहमतुल आलमीन के इंतजामात मुकम्मिल। APNGOS सदर ने 20 जनवरी को चलो असेंबली का ऐलान किया। कोकटपल्ली के वफद ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। नाज़रीन आज के खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहिए TV 21।